the first question answer is double displacement and neutralization reaction both. Now the next question, identify XYZ in the following balanced chemical reaction. Okay, so here you have to identify the stoichiometric coefficient. Okay, the person whom I will be asking, he or she will be telling. Khushi, Yes, ma'am. tell me beta, what after balancing, what numbers will be coming in front of let this PbNO3 and PbO. You understood the question, huh? Yes, ma'am. Just tell me what is the correct option here. मैम नहीं पता. बैलेंस करो बेटा, बैलेंस करना आता है ना आपको. Yes, ma'am. उसको बैलेंस करो, PbNO3 ट्वाइस और उसको बैलेंस करो. बैलेंस कर सकते हो कि नहीं? Yes, ma'am. बैलेंस करो उसको, इक्वेशन को बैलेंस करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा. Sonal, good beta, your answer is correct. Those who want to tell the answer, they can tell through the chat section. I will be able to see it. It is not necessary that I will be calling and then only you will be telling. You can send your answers to the chat section also. Okay, good. Riyanshi, Nandika, good. Beta, are you able to tell Khushi? Millie, Khushi, Khushi C. It's not C, beta. It is what your option number B. It is 224. Okay, let just see this when I'm solving it. The question is PbNO3 twice. Isn't that PbNO3 twice it is, and you are heating it, and it is giving PbO plus NO2 plus O2. Isn't that? This is the question. Now if I balance it, how many lead is one both the sides? Nitrogen, you see, nitrogen is how much in the left hand side? The nitrogen is how much? Nitrogen you see 2. Nitrogen is 2 because this 2 is my left hand side is 2. So when I balance it here, so to balance it, what do I do here? Okay, now check the number in the right hand side. What it will be? 2 2s are 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. Here ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 7. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 3 2 6. अगेन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में छोटा सा एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे? We will multiply 2. When we will multiply 2, what will happen? This 2 is multiplied to all lead, nitrogen, oxygen also. So how many lead is there? 2. So I will multiply here 2. Okay, now check this total number of lead and nitrogen. 2 pb, also 2 pb. Nitrogen you check 2. Here how it is? कितना है यहाँ पे? 2. और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे भी अपना, लेकिन यहाँ पे अपना क्या है? 2 है. इसको अपन क्या करते हैं? अपन कैसे करेंगे इसको? Khushi, are you able to understand or not? Where is she?
Yes, ma'am. खुशी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? हाँ, Yes, ma'am. आ रहा है. आ रहा है ना? Yes, ma'am. आ रहा है. हाँ, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या था, 2 था ऑलरेडी, है कि नहीं? Isn't that? So आपका टोटल कितना हो Yes, जाएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे आप काउंट करके देखो कितना हो रहा ऑक्सीजन, काउंट करके देखो कितना हो रहा ऑक्सीजन यहाँ पे। ma'am. 3 दिखा रहा है. राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कितना है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? Ma'am, left. टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है ऑक्सीजन, कितना है? Ma'am, 6. 6 है। ये क्या है, इसको क्या करेंगे? Yes, ma'am. इसको क्या करेंगे? बोलो जल्दी। Ma'am, इसको. आप लोग को Ma'am, बैलेंसिंग आता वहाँ है पे कि नहीं 4 अच्छी से, ये लिखेंगे बताओ। N के पहले. आपको बैलेंसिंग आता है अच्छी से बेटा? Yes, ma'am. तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्यों मैम, प्रॉब्लम हो रही? ओरली नहीं होता है, कॉपी में कर सकते हैं. कॉपी में कर सकते हो, तो अभी क्या हो गया? अभी मैं आपसे यही तो पूछी थी क्या हो रहा है करके। तो यहाँ पे देखो, अब मैं वापस आ रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका PbNO3 ट्वेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका A2 जो है वो Pb से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 हुआ, दोनों जगह P हुआ, समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है खुशी? अब देखो, और नाइट्रोजन देखो, Yes, ma'am. ये जो 2 है ये नाइट्रोजन से भी मल्टीप्लाइड है कि नहीं? तो ये नाइट्रोजन का कितना था, 2, लेकिन हमने यहाँ जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किया, ये 2 जो है यहाँ से भी, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सामने 4। समझ में आया इतना? क्लियर है खुशी? Yes, ma'am. अब देखो, अब अपन ऑक्सीजन Yes, काउंट ma'am. करेंगे। अब ऑक्सीजन काउंट करेंगे, 3 टू ज़ा 6। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 6 इंटू 2 से सामने जो 2 लगा है वो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये 3 टू ज़ा 6 ऑलरेडी था, और ये 2 जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद, तो टोटल ऑक्सीजन अब कितना हो गया यहाँ पे, 12। अब इसको काउंट करना शुरू करो, आपने जो बैलेंसिंग करने के बाद किया था, 2 उसमें का, ठीक है। अब 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। सो द हियर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 12। क्लियर है? ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2, आपका ये आएगा 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। इज इट क्लियर? और इसका तो 1 है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ओके। Yes, ma'am. और किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को बैलेंसिंग समझ में नहीं आया? हेलो, किसी को बैलेंसिंग समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है? If anybody is not able to understand this balancing, raise your hand, I will explain, otherwise I will move forward. किसी को भी प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? क्लियर है? ओके, so let's move to the next question. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। Okay, so let's see the next question. The next question is MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 H2O plus Cl2. The oxidizing agent is, okay? Yes, Sonal, yes, I have kept everybody in that. Okay, so answer this, Arihant.
Arihant, Arihant, it's not connection problem or something, I think so. Hello, Kushal, hello, hello. HCl. The oxidizing Good morning, it. ma'am. Good morning. It's Arihant Lunia or Arihant Jain? HCl. अरिहंत लूनिया हो कि अरिहंत जैन हो? हाँ अच्छा, गुड बेटा. टेल मी, यू टोल्ड मी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? HCl बोल रहे हो आप बेटा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? No, ma'am. MnO2. Correct is oxide. MnO2 is the oxidizing agent. Okay, because it is removing Agent. because it is removing hydrogen from HCl. Okay, that's why it is the oxidizing agent. Okay, next. Agent. Good. Next question. Kanika. Kanika. Hello. Kanika. Are you all there or not? Or you just don't want to give the answer? You are doing your loss, not me, mine. Hello, Akshat. Ayush. Tell me the answer, beta, of the first one. AgNO3 plus NaCl. क्या होगा correct option? Yes, Harshit. Wait, I will be giving you. Viram. फर्स्ट का आप बोल रहे हो? नो, फर्स्ट का ए आप बोल रहे हो? नहीं. दिव्यांश. करेक्ट बेटा दिव्यांश. नंदिका. करेक्ट. I didn't muted you beta. Wait. Not L. Hello. Ayush, tell me the answer. Yes, ma'am. Tell me the answer. Rest all please be quiet. Ma'am, decomposition reaction. बेटा मैं एक से पूछ रही हूँ ना, आयुष से पूछ, उसको बोले तो मुझे पता तो चले उसको आता है कि नहीं आता है. सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? पता है आयुष? मिली. गुड बेटा. करेक्ट. So next one, Harshit, you tell me. Harshit. मैम सेकंड का डी. सेकंड का डी. फर्स्ट का? फर्स्ट का क्या था? फर्स्ट फर्स्ट का? फर्स्ट का ए. फर्स्ट का ए है? First का B है. नो मैम प्लीज. फर्स्ट का है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. देखो यहाँ पे आपने, हाँ देखो एक चीज है, दो एक्वस सोल्यूशन मिला रहे हो आप. थर्ड का ए. हाँ. फोर्थ का बी. फोर्थ का बी. ओके, अब देखते जाओ. आपने दो एक्वस, हाँ फर्स्ट कॉलम में देखो, आपने दो एक्वस सोल्यूशन को मिलाया तो आपको AgCl सॉलिड मिला, यानी कि ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन. जब हम दो सॉल्ट सोल्यूशन को मिलाते हैं, सोल्यूशन यानी एक्वस,
दोनों को मिलाएंगे और प्रोडक्ट में कोई एस यानी कोई सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है, यानी कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सो दिस इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे देख के समझ जाना, बाकी सारे के सारे एक्वस स्टेट में, बस AgCl सॉलिड में, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे जम रहा है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन होता तो भी उसमें आप प्लेस कर सकते थे, और अगर प्रेसिपिटेशन है तो भी उसमें आ जाएगा। अब दूसरा है H2+Cl2 वाला, तो आपका हाँ, मैम प्लीज एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होगा और नीचे जम जाएगा तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये डबल फर्स्ट वाला की बात कर रही हूँ, AgNO3 और NaCl वाला रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी आएगा, प्रेसिपिटेशन में भी आएगा। अगर यहाँ पे कॉलम में, दूसरे कॉलम में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रहता है तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो, और प्रेसिपिटेशन में भी डाल सकते हो, क्योंकि AgCl के बाजू में क्या लिखा है, S लिखा है, सॉलिड लिखा है कि नहीं, Yes, यानी ma'am. कि वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, H2+Cl2। H2+Cl2 गिव Ma'am, I 2H, understood. हाँ ठीक है, H2+Cl2 गिव्स 2HCl। तो ये क्या है आपका, रेडॉक्स एंड कॉम्बिनेशन दोनों है। Yes, ma'am. ठीक है, डी। और NaOH+H2SO4, ये तो एक एसिड और बेस का रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और दूसरा क्या है, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट गिव्स CO। अब ये तो समझ में आ रहा है कि एक प्रोडक्ट, एक ही सब्सटेंस टूट के 3-4 बना रहा है, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ये चैप्टर आपको अच्छी से पढ़ना है, ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब बोर्ड पैटर्न का ही है। नेक्स्ट, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। अब मुझे आप बताओगे, मैं यहाँ पे बोर्ड में लिखते जाऊंगी, व्हाइट मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे रखा, उसमें मैं लिखते जाऊंगी, आप मेरे को बताते जाना करेक्ट आंसर। द पर्सन हु विल बी टेलिंग मी द फर्स्ट आंसर इज, क्वेश्चंस देख लो भाई। ओके, जस्ट चेक द क्वेश्चंस। ओके, क्लियर है? सो हु विल बी टेलिंग मी फर्स्ट आंसर इज अक्षत। अक्षत, हेलो अक्षत, not there. Hello, Moksh. Hello, Moksh. Not there or not willing to give the answer. Who is this? Purab Jain. पहले बेटा आप मैंने 3 लोगों का नाम दिया, आप उसमें से कौन हो पहले ये बताओ मेरे को। आपको, आपका नाम क्या है बोलो, आई वॉन्ट टू नो द नेम। हेलो, ओके, leave it. Next, मिली। मिली, हेलो मिली। मिली, are you able, no, are you not able to hear my voice or what? Huh? You are not able to reply me? Akshat, if you don't want to give the answer, then what is the use of the revision here? I am taking revision for me or what? Mehul, Yes, ma'am. आप मुझे बताइए कि ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले का क्या होगा, आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम। Yes, sir. Iron react with steam. Ma'am, I don't know. Don't know. Anybody who is able, iron reacts with, Ma'am, can I? H2O. Ma'am. हाँ, one minute. FeOH twice plus hydrogen. एक बोलो भाई। एक जन बोलो कोई, कौन? Ma'am, let me. नेम, नाम बोलो पहले अपना बेटा। Ma'am, Divyansh. दिव्यांश बोलो। 2Fe plus 2Fe, 2H2O, हाँ, that is Fe2O3 plus H2 gas. okay, H2 gas, okay, is it? No, Fe3O4. Fe3O4.
Okay, Fe3O4 plus H2 gas. Now have you done it? H2 gas. हाँ, आपने जो इक्वेशन बताया वो तो सही है, लेकिन आपका इक्वेशन आपका इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं है। 3Fe प्लस बाबू का क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है ये? हेलो? Okay, now just see this. All of you see here. Are you able to see the whiteboard? Sorry, this नीचे दिख रहा है आपको? हेलो? हेलो बेटा? विजिबल ना? तो अभी देखो Fe प्लस H2O लिखा आपने, और आपको प्रोडक्ट में क्या है? जब मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम, आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइड. ओके, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, तो ऑक्साइड क्या बनेगा? Fe3O4. अब जब इसको बैलेंस करना है तो Fe यहाँ पे कितना है? 1 है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट साइड में क्या है? वो 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3. अब यहाँ पे देखो H2 तो दोनों साइड 2 है, ऑक्सीजन कितना है? अब आपका रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? इस H2O को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. और ये 4 जो है, लेकिन वो तो H2 से भी मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 2 8, लेकिन यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2 है. तो मैं इसको क्या करूंगी? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा. तो बैलेंसिंग डन. सो द करेक्ट आंसर इज 3Fe plus 4H2O is Fe3O4 plus 4H2. Is it clear? Done. किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई इशू है? नो मैम. नहीं. अब मैग्नीशियम प्लस HCl. नो प्रॉब्लम. ओके ओके ओके. मैम, हाँ मैम, हाँ बोलो बेटा. अपन अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं ना? यू प्लीज. बेटा आपका वॉइस कट रहा है. वॉइस इज नॉट कमिंग. मैम, अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं ना? आप जैसे कर सकते हो, करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आप ये आपका सिंपल डायरेक्ट मेथड है. आपको हमको क्या चाहिए? फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए. अब वो आपका जो पेपर में जो फाइनल आंसर रहेगा, हम ये नहीं चेक करेंगे कि आपने कौन सा मेथड में दिया, क्योंकि हमने कोई मेथड नहीं बोला. नॉर्मल 10th क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड है, वही चलता है. हम आपसे मेथड नहीं पूछ रहे, हमको फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, वो ऐसा ही आना चाहिए. आपका समझ में आया? क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बोलो. आई एम ऑडिबल. आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के आ रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट. मैग्नीशियम विद डाइल्यूट HCl. ये फेरस ऑक्साइड है कि फेरिक ऑक्साइड है? ये फेरस फेरिक ऑक्साइड है. आयरन 2,3 ऑक्साइड है, क्योंकि फेरस ऑक्साइड होता है FeO और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, और ये दोनों का मिक्सचर है Fe3O4, और ये एक और भी है जिसको हम बोलते हैं हेमेटाइट. ये हेमेटाइट O है. So ma'am, how we will determine that whether we have to write ferrous, ferric or means both का लिखना है? आपका जब ऑक्साइड बनता है तो स्टेबल यही वाला बनता है, फेरस और फेरस फेरिक वाला बनता है, Fe3O4. आपका जब ये जो ऑक्साइड बनेगा ना, अभी जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसमें फेरस फेरिक ऑक्साइड ही बनाता है. अगर एग्जाम में अगर पूछता भी है कि कोई पर्टिकुलर FeO बनाना है या मतलब फेरस ऑक्साइड बनाना है या फेरिक ऑक्साइड बनाना है, तो वो वहां पे मेंशन कर देगा आयरन 2 ऑक्साइड, या फिर आयरन. दिख रहा ना नीचे में क्या लिख रही हूँ वीरम? Yes ma'am. आयरन 2 ऑक्साइड Yes ma'am. Yes ma'am. या फिर आयरन 3 ऑक्साइड. अगर एग्जामिनर को कोई एक पर्टिकुलर मतलब आयरन का ऑक्साइड डिसाइड है कि हमको यही ऑक्साइड चाहिए, तो वो वहां पे मेंशन कर देगा आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड. अदरवाइज अगर आपका नॉर्मल चल रहा है तो Fe3O4 आप यूज करोगे. क्लियर है? फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, लेकिन हाँ. Fe+H2O ही रहेगा. फॉर्मूला हाँ, फॉर्मूला बस ऑक्साइड का बदलेगा. अगर फेरस ले रहे हो तो FeO, फेरिक ले रहे हो तो Fe2O3, और अगर फेरस फेरिक ले रहे हो तो Fe3O4.
ठीक है ना, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नाउ Yes. नेक्स्ट वीरम, वीरम Answer given of हेलो, Yes, ma'am. आप बताओ मुझे नेक्स्ट वाला बैलेंसिंग आप बताओ, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट, Ma'am, आपकी screen visible नहीं है, ma'am. एक Screen सेकंड, sharing पर मैं बता रही हूँ ना, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद मैग, ma'am, please check the chat box. एक मिनट, H2 gas. Ma'am, can I? MgCl. हाँ बोलो ना, फाइनल बैलेंस, Ma'am, please check the chat box. हाँ बेटा एक मिनट, मैंने आपकी screen देखी है मेरे को. मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैग्नीशियम प्लस, मैंने screen share नहीं Can I? की है. मैंने स्टॉप किया हुआ है स्क्रीन शेयरिंग, बताइए मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl का क्या होगा? Magnesium plus Mg plus 2HCl. Mg plus 2HCl, Harshit, ma'am, आज meeting skip by. okay, so Ayush has given very good, Akshat good, and who is this? Sonal, Arihant, Harshit, Ayush, Millie, wow, Divyansh, Nandika, Arihant, wow बेटा गुड, आपने तो इतना जल्दी आंसर दे दिया, गुड गुड, खुशी गुड, okay, so the final answer is here, Mg plus Mg plus 2HCl gives MgCl2 That's H2. MgCl2 plus 2 plus H2, तो ये है फाइनल आंसर, इज इट क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, is it a displacement? Yes, it is a displacement reaction, okay, or you can also say it is a type of oxidation reaction also, क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl से ऑक्सीडेशन, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, so it can be an oxidation reaction also, okay, Single replacement reaction. single displacement plus oxidation. Now let's see the next question. Now next question में है आपका, कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर इज हीटेड इन एयर का क्या आएगा? Cu plus 2. Cu 2Cu plus 2. 2Cu plus O2 gives H2. राशि, गुड, 2Cu प्लस O2 gives 2CuO, गुड, आपको एक ये क्वेश्चन सेम है, 2CuO. हाँ गुड गुड गुड, आपको ये सेम क्वेश्चन आपको एक है कि एक एन एलिमेंट एक्स इज व्हेन हीटेड इट गिव्स अ ब्लैक कलर कंपाउंड, ओके, तो उसमें आपको यही क्वेश्चन को, इसी इक्वेशन को घुमा के पूछा है कि एक एलिमेंट दिया गया है एक्स, जो कि गर्म करने के बाद एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बना रहा है, आप उस एलिमेंट एक्स को पहचानिए और उसके लिए एक इक्वेशन लिखिए, तो यही अगर आपको पूछ रहा है कि एलिमेंट एक्स है और उसको गर्म करने से वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना रहा है, उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो आप इसी को लिखोगे, 2Cu plus O2 gives 2CuO, गुड, रियांशी गुड, करेक्ट है बेटा, नेक्स्ट is write a balanced chemical equation for the mentioned type of reaction involved, aluminium plus bromine gives aluminium bromide, ओके, राशि आपका आंसर सही है, अक्षत, अक्षत Yes, ma'am. आप मुझे बताइए आंसर नेक्स्ट वाले का, एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमीन विल गिव व्हाट, यहाँ पे पूछा ना, एल्यूमिनियम प्लस ब्रोमाइन गिव्स, Ma'am, इसके लिए रिएक्शन बताइए, ma'am, हाँ, Al plus 3Br Al plus 3Br 3Br gives AlBr3. AlBr3,
इज इट अ बैलेंस? Br जो है वो आपका Br के फॉर्म में एक्सिस्ट कर, वो मोनोएटॉमिक है कि डाइएटॉमिक है? डाइएटॉमिक है ना, तो आपका Br नहीं आता है, Br2। जैसे ऑक्सीजन को हम O2 करके लिखते हैं, वैसे Br को भी हम Br2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? क्या हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन? मैम मैं टेल। हाँ, कौन आप ही बोल रहे हो ना, जो पहले जिससे आंसर क्वेश्चन पूछी थी मैं? नो मैम बीराम। अभी हम बोलो बेटा, बोलो बेटा। मैम Al प्लस 3/2 Br2। 3/2 मैम फिर आएगा Al प्लस ब्रैकेट में 3। 3/2 Br2 गीस, फिर मैम Al ब्रैकेट में Br फिर उसके नीचे 3। मैम Al Br3। AlBr3 आपका बोलने का मतलब है। तो आप ऐसे भी बैलेंस करते हो, लेकिन फ्रैक्शनल अभी आप नहीं करोगे। आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 2Al प्लस 2Al मैम कर देंगे तो हो जाएगा। 2Al प्लस 3, प्लस 3 हाँ 2Al प्लस 3Br2 लिख के मैं मैम पूरे 2Al Br, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ तो हो पूरे जाएगा। इक्वेशन को, हाँ टू, आप Al और AlBr3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, Br2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2Al प्लस 3Br2 गिव्स 2Al प्लस 2Al Br3। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसी ने मुझे आंसर दिया था अभी। गुड। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम, आयुष गुड। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा? दिव्यांश करेक्ट है, वीरम करेक्ट है, ओके। आस्था, हेलो, टेल मी बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो इक्वेशन है उसके लिए उसका इक्वेशन क्या होगा? नंदिका, बताइए क्या होगा? आप बता सकते हो आस्था? हर्ष, नो। नंदिका, यू टेल मी द आंसर बेटा। नंदिका, श्रेयांश, यू टेल मी द आंसर बेटा। मैम CaCO3 प्लस CO2। CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। ओके, क्लियर है? हाँ ठीक है, करेक्ट है। सो CaCO3 gives CaO प्लस CO2। ओके गुड, सो दिस इज द करेक्ट वन, करेक्ट आंसर है। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड gives सिल्वर प्लस क्लोरीन। वीरम गुड, रेहान गुड, रियांशी गुड, हर्षित करेक्ट है बेटा। ओके, सो बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट, ओके, अब ये लास्ट मिनट, टाइम खत्म हो रहा है, मेरे को उससे पहले अक्षत, हेलो अक्षत, आप बताओ मुझे नेक्स्ट वाले का, ये सिल्वर वाले का क्या होगा इक्वेशन, सिल्वर क्लोराइड वाले का? एजी मैम कौन सा अक्षर? अक्षत, आई थिंक मालू, अक्षत मालू। मैम हाँ 2Ag प्लस Cl2। 2Ag प्लस Cl2, ये तो उल्टा बोल रहे हो ना बेटा। सी वाला देखो, सिल्वर क्लोराइड गिव्स है। मैम may I?
Yes, Ma'am, sir. मैं बताऊं? 2AgCl हाँ gives हाँ 2Ag plus Cl2. yes 2Ag plus Cl2 good very good okay so this is the correct balance chemical equation so today's class I have to wind up here तो आज मैं आपको सिर्फ केमिकल इक्वेशन का करा पाई इतना इस थोड़ा सा इस चैप्टर का थोड़ा सा और बाकी है आपको एक दिन का गैप मिल रहा है तो मैं एसिड बेसिस का भी थोड़ा सा चालू कर दूंगी रिवीजन ऑन मंडे ओके क्लियर है Yes, ma'am. इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया इसको कंटिन्यू करूंगी और प्लस थोड़ा सा एसिड बेसिस को भी चालू कर दूंगी ओके सो टुडेज क्लास आई विल वाइंड अप हियर ओके थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू गुड डे Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good day, ma'am. गुड डे बेटा गुड डे